नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से पुनः स्वागत है। फ्रेंड्स, 12th बाइपार्टाइट जोर शोर से नेगोशिएशन राउंड पे राउंड हो रहा है और इस एस्पेक्ट्स में बैंकर्स है कि हमें एक रिस्पेक्टफुल वेज स्ट्रक्चर मिलेगा। आपको याद होगा कि 10 नवंबर को एआईबी ने सर्कुलर जारी किया था और सर्कुलर के जो लास्ट पैरा में उन्होंने लिखा था, Comrades, the negotiation have entered a crucial stage and we would like to arrive at amicable understanding acceptable to both the sides. While efforts are on towards the same, the need of the hour is unity of our members and to scotch all type of rumors. Further developments will be informed in due course. Convener UFBU, यानी कि इस मौके पे आप यूनिटी बनाए रखें क्योंकि हम बड़े क्रूशल स्टेज में हैं नेगोशिएशन के और एक अच्छा एमिकेबल सॉल्यूशन निकल के आएगा। और अभी 14 घंटे पहले एक ट्वीट जिसको श्री CS वेंकटचलम ने रीपोस्ट किया अपने ट्विटर हैंडल से, इलॉजिकल कंपैरिजंस also start with the every bipartite discussions. People start comparing anything with everything, be it LIC, bank, government, BPS, CPC, salary, pension, hike, load, pay, DA and what not. Misguide is the only motto. यानी कि जो बैंकर्स की भले की बात करता है वो लोगों को मिसगाइड कर रहा है। जो CS वेंकटाचलम अथवा उनकी टीम सेना जो करती है वो बैंकर्स के हित के लिए करती है। केवल वही बैंकर्स के हितैषी हैं जो रिटायर्ड होने के 10 साल बाद भी बैंकर्स को बिफूल कर रहे हैं। आपको चार्टर ऑफ डिमांड की बात करें तो चार्टर ऑफ डिमांड के मैं क्लरिकल अवार्ड स्टाफ के चार्टर ऑफ डिमांड की बात करता हूं, इसमें आप रेफर करेंगे पॉइंट नंबर 8, revised pay scale and merger of DA into basic pay. Revision of basic pay by merger of DA payable at the average index of the quarter July-September 22. Construction of revised pay scale with adequate additional loading. Fitment to be on stage basis. 9 point. Treatment of special allowance. Existing special allowance and DA thereon to be added to basic pay before working out revised pay scale. और ये जो चार्टर ऑफ डिमांड मैंने नहीं, वेंकटचलम की सेना ने बनाया है। अब अगर हम ऑफिसर्स के चार्टर ऑफ डिमांड की बात करें तो उसका जो फर्स्ट पॉइंट है, वेज रिवीजन शुड टेक इनटू अकाउंट रिस्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स, यानी कि RRRAT, इंप्रूव्ड बेसिक पे कमेंसुरेट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स, RBI ऑफिसर्स एंड LIC ऑफिसर्स. The base date for calculation of quantum hike of ensuing settlement to be based on establishment expenditure as on 30th September 22 as against present practice of the 31st March of the year of wage revision. Third, revision of improvement in pay scale by merger of DA up to 1st August 22. Fourth, a special allowance with DA as on 31st October 22 to be merged with the existing basic pay. And revised DA formula with provision for automatic merger with basic pay as that of central government and improvement in the compensation against price rise. जब आप चार्टर ऑफ डिमांड में इन सब बातों की डिमांड किए थे तो फिर जब डिस्कशन करते समय आप भूल क्यों जाते हैं? डीए का मर्जर करने के लिए यू हैव एग्रीड ऑन 8088 पॉइंट्स। दोबारा जब स्पेशल अलाउंस को मर्जर की बात आई तो मैटर सब जुडिस,
जहां पे सबजुडिस का मतलब ये कतई नहीं होता है कि आप डिस्कस करके अगर कोई एमिकेबल सॉल्यूशन निकालते हैं दोनों पार्टियां तो कोर्ट उसमें नाराज हो जाएगी। ओके, ऑफिसर्स यूनियन सीओडी ऑफ 12 बीपीएस के हिसाब से मर्ज 36.82% DA एज ऑन October 22, merge special allowance in basic, make it comparable to LIC and CPC। जिसका सार है, आपने एग्री किया जहां पे DA 30.38% का मर्जर हो रहा है। Merging of dearness allowance to be merged on 8456 point of the CPI at the average index for the quarter April and May June effective from 1st August 22, on which DA was 36.82%. Loading after merging and of DA and respective special allowance with DA. After merging of DA on 8456 point and merging of respective special allowance with DA, and adequate and the additional loading needs to be given so that the basic pay of scale 1 officers can be framed in a moderate stage, though it will be comparatively at lower side than the basic pay of the Life Insurance Corporation of India. ये सारी बातें you have mentioned in the Charter of Demand. Accordingly, first स्केल 1 to 3, स्केल 4 to 5, स्केल 5 to 6। अगर आप चार्ट देखें, कंपेटिबली मैं चार्ट दे रहा हूं तो एग्जिस्टिंग पे अगर 100 रुपया मान के चलें तो उस पर एडिशनल DA 36.82 DA मर्ज करेंगे, सब टोटल होगा, स्पेशल अलाउंस प्लस DA मर्ज करेंगे तो ये 1 to 2 3 में 100 रुपीज बेसिक पे का 159.25 होगा, 4 और 5 में 100 का 162.82 होगा, 5 और 7 में 164.22 होगा और एडिक्वेट एडिशनल लोड टू बी एडेड टू अबव, और इसके ऊपर आप एडिशनल लोड देंगे। अब बात यहां ये आती है कि जब चार्टर ऑफ डिमांड में है तो डिस्कशंस के समय हम चार्टर ऑफ डिमांड पे अडेयर क्यों नहीं कर रहे हैं, ये तो बेटर लीडर्स जानते हैं, क्योंकि ये रूमर्स नहीं है, ये किसी मेंबर्स को बरगलाने के लिए नहीं है, बल्कि उनकी आई ओपनर की तरह है। यूपीओ लीडर्स डू नॉट वांट कंपैरिजन विथ अदर्स बट इटसेल्फ रिलीज इन द चार्टर ऑफ डिमांड। अगर आप सीपीसी से दे कंपेयर करें तो एक चार्ट मैं आपको दूंगा जिसे आप देखें, उसको डिटेल में मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, और इन सब बातों का कहने का केवल इतना ही तात्पर्य है कि अगर यूनियन वाकई बैंकर्स के हित में काम कर रही है तो 12 बाइपार्टाइट के चार्टर ऑफ डिमांड में जो भी उनके जेन्युइन डिमांड दिए गए हैं उसके बारे में बात करें, और वेज स्ट्रक्चर फॉर्म करते समय इन सब बातों का ध्यान रखें ताकि कहीं न कहीं से हम LIC ऑफिसर्स CPC के पैरिटी में आ जाएं। ये बरगलाने की बात नहीं है, ये हमारे हक और अधिकार की बात है, और इसके लिए हमारे लीडर्स जिम्मेदार होंगे यदि किसी प्रकार का नुकसान हमारे बैंकिंग कम्युनिटी का होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।